Very good morning to all of you. Today I am going to tell you Geography Lesson 5 Water, the second part of reading video. So, with me, you must read your lesson, and if you have any problem, please ask the question on my personal number or in group. So let we start now. Today we are going to teach you verbs. Here, when you are playing, throw ball on the beach and the ball falls into the water. What happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. It means कि अगर आप देखते हो बॉल्स खेलते हो, इन द केस अगर आप बॉल ओशन में थ्रो हो जाता है तो आप पाते हो कि वो फिर बॉल जो है वापस शोर किनारे की तरफ आ जाता है. वाई? बिकॉज वाटर सरफेस पे जो ओशन राइजेस हैं, जो उनके वाटर सरफेस का राइजेस है या फॉल्स है अल्टरनेटली, दैट इज कॉल्ड द वेव्स. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, the wind blowing at very high speed from huge waves. These may cause tremendous destructions, an earthquake, or volcanic eruptions, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal waves called tsunami that may be high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island gets submerged after the tsunami. Actually, tsunami is the Japanese word. कहते हैं जब ये स्टॉर्म, जब तूफान आते हैं, विंड स्पीड बहुत ही हाई होती है और वेव्स जो है स्पीड के कारण बहुत ही हाई एक हाइट पे वो रेज और फॉल होते हैं. और जब इतनी हाइट पे रेज और फॉल्स होने लगते हैं तो वी हमारा एक ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वाटर हैज़ अ एनर्जी. और जब वो एनर्जी चेंज होती है, आप साइंस में पढ़ोगे, जब वो काइनेटिक से स्टैटिक एनर्जी में चेंज होगी तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई ना कोई वर्क करेगी. और ये वर्क क्या है? डिस्ट्रक्शन है. ये डिस्ट्रक्शन क्यों है? क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड वर्क्स हैं. ये कुछ ना कुछ एनर्जी इम्प्लाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल सुनामी 15 मीटर हाई तक जाती है. जो आपने देखा है कि अभी तक हाईएस्ट जो राइजेस हुए हैं वो 150 मीटर हैं पर आवर, और इनकी स्पीड जो है 700 किलोमीटर पर आवर है. इट मीन्स इट हैज़ ए ग्रेट एनर्जी एंड दिस काज ए ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल, इन 2004 in our country, our neighboring country Sri Lanka, in our country Andaman and Nicobar, where is the आपका जो है इंदिरा पॉइंट्स हैं अंडमान और निकोबार में, जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है सबसे नीचे, ये पूरी तरीके से इस वाटर से सबमर्ज हो गया था. बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक ये पूरी तरीके से वाटर से अंडर कवर था. Now, tsunami are the harbor waves struck
havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The waves was result of the earthquake that it epicenter close to the western boundary of Sumatra. इसकी जो एपिसेंटर इज द वर्ड, एपिसेंटर क्या है कि जहाँ से उद्गम स्थल कह सकते हो या जहाँ पे कह सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको हम एपिसेंटर बोल देते हैं, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स हैं और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होता है लाइक अर्थक्वेक की तरह. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor, causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastal line of land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami travel at a speed of about 800 kilometers. Actually, in this topic, we try to tell you what is the reason of tsunami. ये हम जानते हैं कि जो हमारे प्लेट्स हैं, जितने हमारे कंटिनेंट्स हैं, प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स पे हमारी कंट्री सिचुएटेड है अंडर द अर्थ. जो आप क्रस्ट, मेंटल और कोर जो आप इनसाइड द पढ़ते हो. सो ये जो प्लेट आपस में टकराते हैं तो इनमें एक थोड़ी सी गैप बनती है और इस गैप को कवर करने के लिए वाटर रेस होता है, बहुत ही तेज़ी से जाता है और यही तेज़ी इनकी जो स्पीड है यही हमारा फॉर्म बन जाता है सुनामी की तरफ. दैट मीन्स अर्थक्वेक इज़ द रीजन फॉर सुनामी. ये सुनामी का रीज़न क्या है? अर्थक्वेक ही है, जो आपको सुमात्रा में मेजर किया गया था, जो कि आपका एपिसेंटर था. 26 दिसंबर 2004 को रिकॉर्ड किया गया, जहां अर्थक्वेक कितना था रिक्टर स्केल में. रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, जो 9.0 अर्थक्वेक था. नाउ पर आवर comparable to speed of commercial aircraft and completely wash away some of the island in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that marked that southernmost point of India got completely submerged. जो दक्षिण का सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में, वो पूरी तरीके से पानी से डूब जाता है इस सुनामी के कारण. As the wave moves from the earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreases with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves travel up to depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The most affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and the Andaman and Nicobar आइलैंड, जो हमारे कोस्टल एरिया है, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एपिसेंटर, जहाँ एपिसेंटर है वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे अर्थक्वेक में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है. दैट इज़ वाई इन सुमात्रा
The wave's speed is 700 to 900 kilometer per hour. But when it reached to the Andaman and Nicobar Island, it reduced and remained up to only 70 kilometer per hour and their depth is 3 kilometer. But ये भी बहुत ही excess है and it create a lot of destruction in our country and some part of a country जो कोस्टल एरिया में है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunami are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. देखो कह रहा है कि जैसे हम अर्थक्वेक ये नेचुरल डिजास्टर है इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आता है. ये हम जरूर जानते हैं कि कुछ इसके साइंस हैं जिससे हमें प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मे बी अर्थक्वेक आने वाला है, जिससे बॉर्किंग ऑफ डॉग्स हो गए क्योंकि उन्हें आप पढ़ते हो वेब्स के बारे में, तो वेब्स एक सोनिक और एक इंफ्रासोनिक, तो इंफ्रासोनिक साउंड को ये सुन सकते हैं तो इनसे हम मान सकते हैं कि इनको संकेत देते हैं तो हम इनको प्रिडिक्ट करते हैं. कहते हैं इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3-hour नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी, लेकिन फिर भी 3 घंटे पहले एक पोटेंशियल सुनामी की एक नोटिस आ जाती है, लेकिन ये कहाँ पे है पैसिफिक ओशन में क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं. अब अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपने देखा है कि इंडियन ओशन में सिस्मेटिक एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हमें मानते हैं कि यहाँ होता ही नहीं है, लेकिन कंपेयर टू द पैसिफिक. The tsunami that ravaged the south and southeast in Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. ये जो tsunami 2004 दिसंबर 2004 को है, ये विगत या मोर देन 100 ईयर्स में पहली बार इतनी जो है डिस्ट्रक्टिव और इतनी इंटेंसिटी के साथ ये सुनामी आती है. द लार्ज डैमेज कॉज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग. द अर्ली वार्निंग सिस्टम आर नॉलेज अमॉन्ग द कोस्ट dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive waves. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast of view the miracle. As a ingenuitous, there was a large casualty of curious onlookers when the ignitic wave struck. ये हमारी केयरलेस को बता रहा है कि जैसा हम मानते हैं कि भाई इतना तो सुनामी आया नहीं था, तो बहुत सारे लोग जो है अब इससे बचाव के लिए हाई लैंड पे जाके बचना चाहिए या बचते थे, बट समबॉडी वांट टू सी दिस मिरेकल, इस मिरेकल को देखना चाहते थे और ये सुनामी बहुत तेजी से आई जो कि एक रीज़न बना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर twice in a day is called a tides. Now we are going to teach you tides. What is tides? Tides क्या है? इसको हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं. Actually, the rises of water known as ज्वार and falling of water known as the bhata. But in English there is only one word, tides. So tides आता क्यों है? देखो एक्चुअली ओशन में पर डे ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार टाइड्स आना है due to the gravitational force of sun and moon. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water cover much of shore
by rising to its highest level. It is low tides when water falls to its lowest level and recedes from the shore. ये हाई टाइड्स कब होते हैं? जब ये वेव बहुत ऊपर जाती हैं और गिरने के बाद बहुत शोर किनारों तक बहुत दूर तक जाती हैं. That is known as the high tides. The strong gravitational force it is a property which every two body attract to each other. ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप साइंस में पढ़े होंगे कि फोर्स है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स. एज आई टोल्ड यू, द टाइड हैज टू रीजन, only one reason, that is the gravitational force. And why it happened twice a day? Because first due to the gravitational force of sun, and second due to the gravitational force of moon. Both are huge body, and universal gravitational force ये कहता है कि any two object attract to each other, that is the gravitational force. The water of the earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tides. The water of the earth closer to the moon, जो वाटर सरफेस है जो मून के क्लोज होता है, अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि z m1 m2 अपन r². मून पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड. ये हाई टाइड को क्रिएट करता है. ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड आर हाइएस्ट. सो व्हेन द टाइड्स आर हाइएस्ट ऑन द न्यू मून एंड फुल मून डे, व्हेन सन, मून एंड अर्थ lie on a straight line. These tides are called spring tides, and these tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tide. It means after 28 days, 28 डेज में आप न्यू मून और फुल मून होता है, तो न्यू मून और लास्ट क्वार्टर जो मून का होता है, इसमें जो मून होता है वो डायगोनली हो जाता है, डायगोनल में स्लाइंट हो जाता है, और इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल पुल कम पड़ पाता है और जिसके कारण लो टाइड्स आते हैं. दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इन्हें हम नीप टाइड्स भी कहते हैं. हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन. एडवांटेज है, हाई टाइड्स क्या करता है? नेविगेशन में हेल्प करता है, कुछ खोज करने में. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली. द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग. मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. क्योंकि लहरें बहुत ऊपर उठती हैं तो मछलियाँ या फिर नेविगेशन के लिए शिप जो है अराइव करते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, और ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा किनारों तक आ जाती हैं, जो आसान हो जाता है. मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस.